Gym mates. Gym mate. Yeah, exactly. Okay, I see. How long have you all been gymming for? Well, we just joined here like some months back, but Okay. earlier we used to gym. Okay, so On and off चलता I'll start with that itself. Now you see the whole after COVID, everybody's conscious itself about their body and about their physique, and everybody want to work on their self rather than wasting so much. So we have seen a complete shift. It's like social media or anything. What do you think about it? Well, after COVID, we saw that how critically important physical health is, right? Yeah. And that actually, and when people lost someone, that's how they understood the value. It's not something, it's not a foreign concept, it's not an alien concept. The concept was always there, it was always there, but people understood the criticality post the COVID. Absolutely. So, and when they lost, when they saw unhealthy people and people with even good health going away, then they thought that now is a high time and they need to start working on their physique, with their health. Yeah. So after that, that's a pretty good thing, right? That's what happened. absolutely. It's a pretty good thing. Being a And sportsman, I agree to that. Yeah, exactly. मतलब यहाँ पे योगा kicked in, gymming kicked in. मतलब शरीर पे ध्यान देना तो जरूरी है ना यार, वो तो बोल सकते हो ना कि अच्छा बंदी पे आ जाते हैं अभी। डॉक्टर को 10,000 देने से अच्छा मेंबरशिप भर दो। अरे वाह वाह वाह, Pretty good point. Huh? बंदी पे आ जाते हैं। Everybody of you, like you have a girlfriend or all of you are single or what's going on? Well, I'm Ruka fight, but I've got my marriage like next year coming up. Okay, that's actually congratulations. Thank you so much. What do you think life is gonna change after getting married and all? Or are you happy about, like you're excited about it? Well, I can see it changing. Obviously, the responsibility kicks in. But होता है ना कि मतलब this is a phase जो कि हमें जीना ही चाहिए. जीना ही जीना है सब। So and I often ask this thing, मैं अपने पापा से बहुत बार पूछता हूँ कि पापा क्या changes आते हैं. So it's all about sacrifice. आप communicate करो, आप sacrifice करते हो चीजों को अपने partner के लिए, responsibilities के लिए. So that's why मतलब चीजें sorted रहती हैं. हाँ जी, तो अभी जैसे तुम लोग को लगता है, what do you think आज की जनरेशन के हिसाब से जैसे hookup culture बहुत ज्यादा बढ़ गया है, so are you the one still about committed relationship और casual hookups, casual relationship? कैजुअल में तो वैसे कुछ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कैजुअल अभी बहुत ही मतलब फालतू में टाइम वेस्ट ही वो अपना इससे अच्छा लगे और इन्वेस्ट कर ले अपना टाइम तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं खुद भाई इससे एग्री करता हूँ। 22-23 से पहले तो करना मतलब फालतू ही है। तो किस पे ध्यान है सबसे ज्यादा, पढ़ाई पे, काम पे कि किस पे? जॉब मेरा जॉब पे। मतलब पता है I've got a very interesting point here which I also wanted to ask you. मतलब आजकल क्या हो रहा है, people have decoupled love and sex, right? That's actually true. Exactly. Yeah. So now sex is something different, love is something different. Yeah. But अगर आप मतलब थोड़ा सा भी आपकी जहाँ तक मैं बिलीव करता हूँ, because I'm in a long distance relationship, obviously मतलब for being guys, you already come across lot of people, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे offers आते हैं, सब कुछ होता है मतलब। हाँ जी। But I guess जो चीज मुझे बचा के रखती है इन सब चीजों से, from being getting infidel और मतलब loyalty कम करने से, जो मुझे बचाती है वो मतलब मेरी आस्था है भगवान में, because मतलब you already know मतलब we are huge followers of श्री राम। हाँ जी। So श्री राम के आने के बाद में जो पतिव्रता जो प्रथा थी वो स्टार्ट हुई कि मतलब you are supposed to get committed to one girl, stay committed to one girl. So I guess अगर आपके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी आस्था स्ट्रॉन्ग है, तो वो धर्म बहुत हेल्प करता है आपको, आपका रिलीजन बहुत हेल्प करता है, आपकी भक्ति बहुत हेल्प करती है उसमें। क्योंकि वो चीज हमको बताता है कि हमारा चरित्र कैसा है, कि हमको दूसरी we have to stay committed to a particular thing, because आजकल क्या it's easy to move on after the social media and the internet came. It's too easy for people to change and people to let go. They don't want to sacrifice, they don't want to adjust करने का नेचर खत्म हो चुका है। कोई एडजस्ट नहीं करता आजकल सबको शॉर्ट टर्म सिमुलेशन, शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए। सो दे डोंट वांट टू अंडरगो। अब लोग ये नहीं समझते कि ये भी एक टाइप की तपस्या है, जो आप ऊपर वाले को दिखा रहे हो, आप प्रूव करते हो अपने लव को दूर रह के अपनी बंदी से। मतलब कितने ऑफर्स मिल सकते हैं, मतलब किसी को भी कितने भी ऑफर्स मिल सकते हैं यहाँ पे, एक स्वाइप में यू कैन गेट हुक्ड अप, राइट? सो मतलब और आई हैव बीन लिविंग इनटू अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिंस पास्ट 1 ईयर। मेरा रोका हुआ, उसके बाद में अगेन माय पार्टनर वेंट टू बेंगलुरु टू वर्क। अब मुझे नहीं पता उनको छुट्टी कब मिलेगी, मुझे छुट्टी कब मिलेगी। सो मतलब एक तो ये भी लगता है कि प्लस कर्मा का बहुत बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पे। आप देखो कि आप अगर कर्मा से डरते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हुक्ड अप विद समवन्स वाइफ, यू हुक्ड अप विद सम अदर पर्सन, और आपको पता है आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत किया है, और जानते हुए तो मतलब कहीं ना कहीं आपको हिट बैक जरूर करेगा लाइफ। वो तो वही सर्कल ऑफ लाइफ है, सर्कल ऑफ लाइफ, और वो किसी ना किसी वे में वापस आएगा। इसीलिए द पीपल हु ट्राई टू
बी कूल इन कॉलेज एंड स्कूल लाइफ, आगे जाके उनका पूरा कार्मिक, जब वो लोग रियल वर्ल्ड में आते हैं तब पूरा साइकिल चेंज होता है, देयर लाइक ओके आई एम अलोन नाउ। मतलब जो है। संत, जैसे संत प्रेमानंद जी है, जिनके जिनके यहाँ विराट कोहली गए थे, हाँ जी, हाँ जिनके जी। यहाँ विराट कोहली गए थे, जिनका वो कहते हैं कि मतलब ये इतना बड़ा पाप है, आप किसी और की वाइफ को जब टच करते हो या आप किसी और के पार्टनर को टच करते हो, हाँ जी। मतलब जो जितने क्या कहते हैं ग्रंथ हैं और जो जितने हमारे बड़े जो मतलब एपिक्स ही कह सकते हैं उनको, उनके हिसाब से गेटिंग इनटू रिलेशनशिप इज आल्सो बैड। उनके हिसाब से रिलेशन तब तक सर्टिफाई होता है जब शादी नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग ये भी बोलते हैं कि जब हमारा कुछ बॉन्ड है ही नहीं, जब धर्म के हिसाब से हमारा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो वी कैन डू एनीथिंग। बट आपको जब अंदर से पता है कि आपने गलत किया है किसी लड़की के साथ, आप किसी की आत्मा को दुख पहुंचाते हो, भले ही वो चाहे 2 मिनट का ही क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे ही वो बंदी रोके किसी और के साथ चली गई, बट आपने दुख पहुंचाया, मतलब वो 100% आएगा ही आएगा, चाहे वो फाइनेंशियली आए, चाहे हेल्थ पे आए, चाहे कैसे भी करके आए, चाहे आपका पार्टनर आपको बाद में चीट करे, मुझे ऐसा लगता है, वो आएगा वो वापस आया कंप्लीटली। चलो लास्ट क्वेश्चन आई वांट आस्क कि फॉर अस, फॉर जनरेशन हु आर 18 19 20, कोई एक टिप्स टू मेंटेन, टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट इनटू अ गुड रिलेशनशिप, उसके बाद टू मेंटेन एंड हाउ टू बी ब्लैंक एंड टू सैक्रिफाइस, उसके लिए कुछ टिप्स या कुछ सजेशन, एनीथिंग? यार मैं बस एक, अगर मैं 2 टिप्स दूंगा, हाँ जी। I'll give 2 tips। पहला, चाहे आप अपना ईगो अपने बॉन्ड में कभी मत लेके आना कि मैं क्यों बोलूं, मतलब अगर मैं पूछता हूं तो मैं क्यों बोलूं, वो क्यों नहीं बोलूं, या वो मैं क्यों पूछूं, वो क्यों नहीं पूछूं। इससे बहुत सारे रिलेशनशिप मैंने खराब होते देखे ईगो से, कि मतलब ईगो पूरी खत्म ही कर देते रिलेशनशिप को। हाँ जी, हाँ जी। कम्युनिकेशन जहाँ पे खत्म हो गया ना, कम्युनिकेशन की है, तो पहला तो एक ही कम्युनिकेट करते रहो, टॉक इट आउट, ठीक है। दूसरा, अगर आप पार्टनर ढूंढने जा रहे हो तो एक जो बहुत ही गोल्डन कोट मैंने पढ़ा था एक बुक में, कि अगर आप किसी का एक्सट्रीम झेल सकते हो, किसी का एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम उसकी एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम उसकी सैडनेस, अगर आप वो झेल सकते हो ना, तो दैट मींस आप उसके साथ सही रह लो, वो सोल कनेक्शन आ चुका है। वो कनेक्शन आ जाता है। अगर आपको पता लग जाता है कि हाँ मैं इस बंदे का एक्सट्रीम झेल सकते, देखो परफेक्ट कुछ नहीं होगा, लड़ोगे आप फिर भी, ये साइन कर्व की तरह अप एंड डाउन चलता ही रहेगा। बट दैट इज द यिंग यांग थियरी ना, कि Exactly. हाँ मतलब कि आप कितना जल्दी वापस आते हो, पूरी दुनिया ट्राई करेगी, मतलब कंधे देने वाले 1000 मिल जाएंगे, आपको भी और आपकी पार्टनर को भी, राइट? हाँ जी, हाँ जी। देने वाले कितने लाखों लोग हैं, राइट? वो डिपेंड करता है कि आप दुनिया को कितना बाहर रखते हो अपने बॉन्ड से, और एक दूसरे के कितना आप सैक्रिफाइस करके पास में होते हो। That's all matters. Wise words. Thank you for talking to us. I loved it. थोड़ा Amazing. This concept is literally amazing. I never pictured it like this. I'll see something like थोड़ा this. नया. अरे So amazing. do you think we should do Really it loved more man. more in Surat? अरे यार, for sure, man. I'll be your first guest in case if you want to get into a podcast. I would be happy. For sure, for sure.